Hello dear students, let us study the lesson number 14, that is the semiconductor. And in this one lesson of semiconductor, we have to study in detail the concepts of the semiconductor. I am Harshada Tande. I will teach you this semiconductor lesson in detail. The semiconductors. Now this is the semiconductor, that is the diode. There are electrons and the holes, and how the motion of the electrons and hole is there, and how this light, that is the bulb glow, that we will study in this one semiconductor. The semiconductor. What is the semiconductor? Students, a semiconductor is a material which has a electrical conductivity in between conductors and insulator. That is its electrical conductivity. That is how it conduct. That conductivity of this semiconductor lies between the conductor and the insulator. That is electrical conductivity. That is the current flow through the circuit, that is to the metal, that semiconductor. So this electrical conductivity of this one semiconductor lies between the conductor and the insulator. The example of the semiconductors are germanium, silicon, selenium, carbon. These are the example of the semiconductor. Now this is the diode, this is the LED, this is the transistor, this is the IC. Now this semiconductor, with the help of this semiconductor technology, it is possible to fabricate and interconnect thousands of the components on a single silicon wafer and called as the integrated circuit. And so that student, so continuous reduction in size and the cost and the improvement in the performance of the electrical circuit is the nothing but the semiconductor. मतलब सेमीकंडक्टर ये जो मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर में लाई होती है. जैसे एग्जांपल है सिलिकॉन, सेलेनियम, कार्बन एंड दिस सेमीकंडक्टर्स. सो ये जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें कॉस्ट भी कम लगती है और साइज भी छोटा लगता है. साइज ज्यादा नहीं लगता इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए. सो दिस इज द इंटीग्रेटेड सर्किट एंड ड्यू टू दिस वन वी यूज द सेमीकंडक्टर. अब यहाँ पे देखिए, ये है सिलिकॉन. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14. सो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन द 2 इलेक्ट्रॉन, second orbit contain the 8 electron, and the last orbit contain the 4 electron. The semiconductors are the metal which are temperature dependent. तो सेमीकंडक्टर जो है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है. तो सिलिकॉन, जर्मेनियम आर द सेमीकंडक्टर at the room temperature. This semiconductor, silicon or germanium, it is act as a conductor, and at 0 degree temperature the semiconductors act as a insulator. तो ये जो सेमीकंडक्टर्स है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है. तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे सिलिकॉन, जर्मेनियम अगर हम लेते हैं तो वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं. क्यों? क्योंकि मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है वहां पे. So that there is no motion of the electrons, and that's why current will be not flow through it, and that's why it is act as a insulator. Whereas at room temperature पे क्या हो रहा है कि सेमीकंडक्टर ये कंडक्टर जैसा बिहेव कर रहा है. क्यों? क्योंकि at room temperature the semiconductor get the thermal energy. थर्मल एनर्जी मिलने के बाद में क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो मोशन में आ जाएंगे, एंड ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन द करंट विल बी फ्लो थ्रू द सेमीकंडक्टर. और जब करंट फ्लो होता है तो वो सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है अभी? इट इज एक्ट एज अ कंडक्टर. मतलब
0 डिग्री पे सेमीकंडक्टर ये इंसुलेटर जैसा होता है और रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर ये कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो सेमीकंडक्टर्स है ना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होने की वजह से कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीजेस विथ इट्स टेम्परेचर। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर is change with its temperature is a very useful property, and we find the various application in large number of the electronic devices. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये अगर ग्राफ हम देखते हैं तो इस ग्राफ में ये मेटल के लिए है और ये सेमीकंडक्टर के लिए है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया है और यहाँ पे हमने ली है कंडक्टिविटी। सो हियर when the temperature increases gradually, its conductivity is initially having the maximum value in metal. As the temperature increases, the conductivity gradually decrease हो रही है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, ये है मेटल में। अभी सेमीकंडक्टर में देखिए, ये टेम्परेचर, ये कंडक्टिविटी है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी क्या हो रही है, ग्रेजुअली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, द कंडक्टिविटी इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस। तो सेमीकंडक्टर क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे देखिए मटेरियल एंड इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी for the silver, copper, aluminum, gold, nichrome, platinum, germanium, silicon, air, glass and teflon. तो ये उसकी इलेक्ट्रिकल, ये मटेरियल की ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स आर द टेम्परेचर डिपेंडेंट। Semiconducting elements, as I told you, कि semiconductors are the temperature dependent. Its electrical conductivity changes with the temperature. The semiconductors act as an insulator at 0 degree temperature, and the semiconductor, that is the silicon, germanium, act as a कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। मतलब 0 डिग्री है तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, और रूम टेम्परेचर में टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो वो सेमीकंडक्टर कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। तो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, ये जो कंडक्टिविटी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। सो इन सेमीकंडक्टर at room temperature, the semiconductor having the low electrical conductivity, but if you increase the temperature, room temperature से और भी अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया सेमीकंडक्टर का, सिलिकॉन, जर्मेनियम का, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ग्राफ में एक्सप्लेन किया था। सो द गैप, अब आपको पता है वैलेंस बैंड होती है एंड द कंडक्शन बैंड। देयर आर 2 बैंड्स। तो वैलेंस बैंड मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट आर द वैलेंस बैंड, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंट बैंड, एंड द कंडक्शन बैंड इज देयर। सो द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज द इंटरमीडिएट इन साइज इन सेमीकंडक्टर। मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप होता है ना, ये सेमीकंडक्टर में, वो होता है इंटरमीडिएट साइड में होता है, दैट इज द सिलिकॉन एंड फॉर द जर्मेनियम। अब ये जो सेमीकंडक्टर है, इसमें अगर डोपिंग होता है, डोपिंग करते हैं, कुछ इंप्योरिटी आइटम ऐड करते हैं, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनकी कंडक्टिविटी हम इंक्रीज कर सकते हैं। So the semiconducting elements form the basis of solid state electron devices, and silicon or germanium are the semiconducting elements whose electrical conductivity increases as the temperature increases.
अगर और कंडक्टिविटी इंक्रीज करना है तो हम उसमें क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे. दैट इज वी विल ऐड द सम इम्प्योरिटी एटम इन द सिलिकॉन और इन जर्मेनियम सो दैट इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम इंक्रीज करेंगे. मतलब सिलिकॉन में या तो फिर जर्मेनियम में हम जैसे आर्सेनिक है, बोरॉन है, अगर वो ऐड करते हैं, डोपिंग करते हैं उसका, तो ये जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, और भी इंक्रीज हो जाएगी. This is the silicon and this is the germanium. Let us study this one. You know that the students, the silicon atomic number is 14. So there are 14 electrons. In the first orbit, there are 2 electrons. In second orbit, there are 8 electrons. And in last orbit, there are 4 valence electrons. ये last orbit में कितने electrons है? 4 electrons है. So this is for the silicon and for the germanium. तो silicon और germanium near about same ही है, क्योंकि इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन आउटर में शेल में है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन आउटर में शेल में है. अब जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32. तो पहले ऑर्बिट में है 2, देन है 8, देन है 18 एंड देन द 4. So total 32 electrons है. That is in outermost orbit there are the 4 valence electron. जैसे सिलिकॉन में है लास्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैसे ही जर्मेनियम में लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है. सो हियर द मेड फ्रॉम द मटेरियल दैट हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर ऑर्बिटल. मतलब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स लास्ट ऑर्बिट, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट. एंड द जर्मेनियम एंड द सिलिकॉन, दीज आर द मोस्ट कॉमन. अब ये जो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ये मोस्टली प्रिफर करते हैं क्योंकि सिलिकॉन की एबिलिटी ज्यादा है विथस्टैंड करने के लिए. सो सिलिकॉन इज प्रिफर्ड ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड द हीट. एंड ये जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है, दीज आर द प्योर सेमीकंडक्टर. सो दिस प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम has no special properties and will make it a pure conductive material. ये जो है ये प्योर सेमीकंडक्टर्स है, इसमें कुछ भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है, तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है हमें by adding the some impurity in silicon and in germanium.